Good morning, dear students. So, in our last topic, we had already covered up to the principle number 12. In our last class of BSM, we had already covered about the principle number 11, that is principle of equity, and principle number 12, that is principle of stability in the tenure of personnel. So, what does it mean, principle of equity? Equity means justice and kindliness. It is the Fayol suggested that it is the responsibility of the management to deal with all the employees with equal amount of justice and kindliness. That means the rules and regulations should be same for each and every person in the organization. That person or that employee may be working at the top level, that person may be working at the employee level. So the rules and regulations of the organization should be equal for each and every employee in the organization. That is as per the principle of equity, which we had already covered. Then the second principle we had already covered in the last class, that is principle of stability in the tenure of personnel. What does it mean, principle of stability? Stability means consistency, tenure means period, personnel means group of. So stability of personnel means the employees who are working in an organization, they must have worked for a long period of time. It is not like that a person or an employee is working in an organization for a short period. That may be 1 month, that may be 5 months, that may be 1 year. It is not like that a person is working for a short time period in an organization. It is the responsibility of the management that every employee should work in an organization for a long period of time. So, it is the responsibility of the management how the workers can work in an organization for a long period of time. That is what we had already covered in the principle number 12, that is principle of stability in the tenure of personnel. Then let us discuss the next principle, the last two principles, that is principle number 13 and principle number 14. So the principle number 13 is principle of initiative. So the 13 number principle, that is principle of initiative. So what does it mean, initiative? The word initiative means to making out plans. तो initiative का मतलब क्या होता है? So the word initiative means what? Making out plans. Initiative का मतलब क्या होगा? We have to make out the various plans and its effective implementation. Its effective implementation का मतलब क्या होता है? इसका properly utilization होना चाहिए. So it is the responsibility of the management how the plans can be performed in an effective manner. Okay. So how the plans can be done in an effective way. So principle of initiative, in that principle Fayol suggested that we have to make out plans. So every employee in the organization, they are initiative in nature. That means they can give their suggestions to the management, so that by taking the suggestions of the employees, the management is able to take the various important decisions in the organization. So it is the responsibility of the management to motivate the workers so that they feel initiativeness. Initiative means after getting motivated by the management, the workers may feel initiative. तो क्या होगा, अगर मैनेजमेंट का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट क्या करेगा, जितने भी सारे एम्प्लॉइज हैं उन लोगों को मोटिवेट करेगा ताकि वो लोग क्या करेंगे, काम जो है काम को अपने हिसाब से करेंगे. वो लोग इनिशिएटिवनेस होंगे तो उसका फायदा क्या होगा, काम ठीक से हो पाएगा, अच्छे से होगा, इफेक्टिवली होगा. ठीक है. जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम लोग ये पॉइंट का एग्जाम्पल बात करेंगे तो एग्जाम्पल में क्या होगा, जैसे कि एक मैनेजमेंट है, एक प्रोडक्शन का मैनेजर है, तो बिफोर टेकिंग एन इम्पोर्टेंट डिसीजन, इफ द मैनेजर मेकिंग कंसल्ट विथ द एम्प्लॉइज और विथ हिज सबऑर्डिनेट्स, देन द डिसीजंस कैन बी मोर इफेक्टिव. ओके. अगर बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, कोई भी डिसीजन लेने से पहले मैनेजर क्या करेगा, अपने जो एम्प्लॉइज है, उसका जो सबऑर्डिनेट्स है, उन लोगों के साथ अगर बात करेगा, उनके साथ डिस्कस करेगा, उनका सजेशंस लेगा,
उसके बाद अगर डिसीजन लेगा तो डिसीजन क्या होगा, ज्यादा इफेक्टिव होगा, डिसीजन अच्छे से होगा, ठीक है। लेकिन वो अगर अपने आप ही डिसीजन लेगा, दैट इज वन साइडेड डिसीजन, दैट मे नॉट बी फ्रूटफुल, ठीक है। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, इनिशिएटिव मतलब द मैनेजर हैज टू मोटिवेट, द मैनेजर has to motivate his subordinates to show their इनिशिएटिवनेस। ओके, सो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैनेजर जो होता है ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजर क्या करेगा, मैनेजर हैज टू मोटिवेट हिज सबऑर्डिनेट्स, मैनेजर हैज टू एनकरेज हिज सबऑर्डिनेट टू शो देयर इनिशिएटिवनेस। वो लोग अपने हिसाब से काम करेंगे, अपने हिसाब से जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वहाँ पे अपना सजेशंस देंगे, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिवनेस। जैसे कि एग्जाम्पल बोला, before taking an important decision, the manager must have to consult with the employees, with his subordinate, so that the decision can be more fruitful. Okay, so let us discuss about the various merits and demerits. Merits and demerits. Merits में पहला पॉइंट क्या होगा, ये जो पॉइंट है यहाँ पे feeling of belongingness, feeling of belongingness, and the second one is encouraging. So the first point is feeling of belongingness. Feeling of belongingness पहला मेरिट होगा, क्यों होगा, क्योंकि अगर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव को अप्लाई करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में तो उसका बेनिफिट क्या होगा, द वर्कर्स आर फील more belongingness to the organization, they are more devoted towards the organization, तो वहाँ पे क्या होगा, उनका बिलोंगिंगनेस डेवलप होगा। उसी तरह ही सेकंड पॉइंट एनकरेजिंग। एनकरेजिंग मीन्स जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे बोला कि मैनेजर जो होगा वो ज्यादा एनकरेज करेगा, ज्यादा मोटिवेट करेगा वर्कर्स को। तो अगर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिवनेस अप्लाई करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो उसका मेरिट क्या होगा, फर्स्ट मेरिट इज प्रिंसिपल ऑफ बिलोंगिंगनेस, फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, देन द सेकंड मेरिट इज एनकरेजिंग। उसी तरह ही डिमेरिट्स में फर्स्ट डिमेरिट that is dissatisfaction, then the second one is adverse effect. So the first demerit is that is dissatisfaction. So dissatisfaction means if the employees are giving some suggestions to the management, if the management does not accept their suggestions, then they feel dissatisfied. Okay, तो जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो लोग ने अपना सजेशंस दिया है, अगर मैनेजमेंट वो सजेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वहां पे क्या होगा, द एम्प्लॉयज में फील डिससेटिस्फाइड। उसी तरह एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट का मतलब क्या होगा, जैसे कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो लोग अगर अपने इनिशिएटिव अपने हिसाब से अगर काम करेंगे तो उसका जो डे टू डे वर्किंग होता है उस पर एडवर्स इफेक्ट होगा, बैड इफेक्ट होगा। अगर वो लोग अपने हिसाब से काम करेंगे तो इट मे बी रिजल्ट दैट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल कैन नॉट बी अचीव। सो ये है तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिवनेस। लेट अस डिस्कस द लास्ट प्रिंसिपल, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरेट डिकॉर्स। 14th principle, that is principle of principle, that is principle of aspirate discourse. Aspirate discourse means प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरेट डिकॉर्स। तो एस्पिरेट डिकॉर्स का मतलब क्या होता है? एस्पिरेट डिकॉर्स मीन्स देयर मस्ट बी ए टीम स्पिरिट एंड कोऑर्डिनेशन अमंग द वर्कर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सो एस्पिरेट डिकॉर्स, इसका ये जो वर्ड है एस्पिरेट डिकॉर्स, एस्पिरेट डिकॉर्स, तो इसका मतलब क्या होता है? देयर मस्ट बी ए कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, टीम वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो लोग क्या करेंगे, मिलके ही एक काम को करेंगे, तभी जाके काम ठीक से हो पाएगा। सो द एस्पिरेट डिकॉर्स means he also suggested that aspirate discourse means devotion,
and loyalty to a group in which he belongs. That means principle of esprit de corps means devotion and loyalty to a group in which a person belongs. तो एक वर्कर जो ग्रुप में वो काम कर रहा है उस ग्रुप के लिए उसका डिवोशन होना चाहिए, वो लॉयल होना चाहिए, उसका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, तभी जाके जो ग्रुप का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाएगा. ठीक है. जैसे कि मतलब एक क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं, तो 11 प्लेयर्स अगर अपना एफर्ट देंगे तभी जाके जो टीम होता है वो टीम अपना गोल अचीव कर पाएगा, मैच को जीत पाएगा. अगर मतलब एक एम्प्लॉय या फिर एक प्लेयर अगर अच्छे से खेलेगा, सपोज मान लो इंडिया टीम है, विराट कोहली अच्छे से बैटिंग कर रहा है, लेकिन और जो बाकी 10 प्लेयर हैं उनमें से कोई भी अगर ठीक से अच्छे से नहीं खेलेगा, सभी जाके आउट होकर चले आएंगे, तो अकेला विराट कोहली तो मैच को नहीं जीता पाएगा. इसी तरह ही एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक ग्रुप में जितने भी पर्सन होते हैं, सपोज मान लो एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वहां पे 100 मेंबर्स हैं. ठीक है. जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो 100 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, तो जितने भी सारे एम्प्लॉइज हैं वो सारे अगर मिलकर काम करेंगे तभी जाके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का गोल अचीव होगा. ठीक है. तो ये होता है एस्पिरिट डी कॉर्प्स. तो एस्पिरिट डी कॉर्प्स मीन्स देयर मस्ट बी हार्मोनी, टीम स्पिरिट, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन among the workers. तो एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए? हार्मोनी होना चाहिए, टीम स्पिरिट होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन होना चाहिए. So here Fayol suggested that it is the responsibility of the management to discard two things. दो चीजों को अलग करना चाहिए. फेयल ने सजेस्ट किया है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट का. मैनेजमेंट क्या करेगा? दो चीजों को ऑर्गेनाइजेशन से बाहर करेगा. क्या होता है? टू डिस्कार्ड क्या करेगा? फर्स्ट वन इज टू डिवाइड एंड रूल. देन द सेकेंड वन रिटन कम्युनिकेशन प्रोसीजर. तो फेयर ने क्या सजेस्ट किया है? इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू डिस्कार्ड टू थिंग्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट वन इज डिवाइड एंड रूल. जो प्रोसीजर होता है डिवाइड एंड रूल का, उसको अवॉइड करेंगे. एंड द सेकंड वन इज रिटन कम्युनिकेशन शुड बी अब्यूज्ड. जो रिटन कम्युनिकेशन है, रिटन कम्युनिकेशन जो प्रोसीजर है वहां पे क्या होता है? काम बेसिकली डिले हो जाता है, लेट हो जाता है. इसीलिए क्या होगा? दो चीजों को अवॉइड करना चाहिए. फर्स्ट वन इज टू डिवाइड एंड रूल प्रोसीजर and the second one is written communication procedure. We have to avoid these two things. So let us discuss its various merits. Let us discuss the various merits and demerits. First merit is improve the performance. Then the second one, team spirit. So the various merits of principle of एस्पिरिट डी कॉर्प्स. एस्पिरिट डी कॉर्प्स का मेरिट क्या होगा? पहला मेरिट इम्प्रूव परफॉर्मेंस. क्योंकि जितने भी एम्प्लॉइज एक ऑर्गेनाइजेशन में है, एक ग्रुप में है, वो लोग क्या करेंगे? अपना ऑर्गेनाइजेशन का गोल को अचीव करने के लिए काम करेंगे. तो वहां पे क्या होगा? उन लोगों का एफिशिएंसी इंक्रीज होगा, देयर परफॉर्मेंस शुड बी इंक्रीज. उसी तरह ही सेकंड वन टीम स्पिरिट. टीम स्पिरिट मतलब जितने भी कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे, हार्मोनी में काम करेंगे, देयर मस्ट बी ए टीम स्पिरिट इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो अगर टीम स्पिरिट होगा तो उसका बेनिफिट क्या होगा? जितने भी एम्प्लॉइज हैं अच्छे से काम करेंगे. लेट अस डिस्कस अबाउट द वेरियस डिमेरिट्स. अवॉइडिंग वर्क. जैसे कि एक डिमेरिट हो सकता है अवॉइडिंग वर्क. अवॉइडिंग वर्क मतलब क्या होगा? जितने भी एक एम्प्लॉय है वो लोग क्या करेंगे? हाँ, एक आदमी तो कर रहा है, मैं नहीं करूंगा तब भी चलेगा, ऐसा मतलब थिंकिंग आएगा. अवॉइडिंग वर्क. अवॉइडिंग वर्क मतलब जितने भी आलसी एम्प्लॉय है, जो मतलब एम्प्लॉय ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, वो लोग क्या सोचेंगे कि हाँ मैं नहीं करूंगा तो वो कर लेगा, तो काम तो हो जाएगा ना. इसीलिए इस तरह का डेवलपमेंट हो सकता है थिंकिंग में. तो ये क्या होगा? एक डिमेरिट हो सकता है. जैसे कि सपोज मान लो इंडिया टीम को बैटिंग करना है, तो कोहली अच्छा बैटिंग कर रहा है इसीलिए रोहित शर्मा आउट हो जाएगा, या फिर कोहली अच्छा बैटिंग कर रहा है इसीलिए धोनी जाके आउट होकर चला जाएगा. तो वहां पे क्या होगा? वो डिमेरिट होगा, अवॉइडिंग वर्क.
एक एम्प्लॉय सोच रहा है कि हाँ वो तो कर रहा है, मैं नहीं करूंगा तो हो जाएगा, ऐसा थिंकिंग आ सकता है। उसी तरह ही दूसरा डिमेरिट्स क्या हो सकता है कि एफिशिएंट एम्प्लॉयज आर फील डिस्करेज्ड। एफिशिएंट एम्प्लॉयज में फील डिस्करेज्ड। डिस्करेज्ड मतलब क्या होता है कि सपोज एक एम्प्लॉय है वो अच्छा काम कर रहा है लेकिन उसको अपना क्रेडिट नहीं मिल रहा है, वो अच्छा काम कर रहा है, बाकी जितने एम्प्लॉय है वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो रहा है। तो वहां पे क्या हो रहा है, जो अप्राइजल मिल रहा है वो क्या होता है, डायरेक्टली ग्रुप को अप्राइजल मिल रहा है। तो वहां पे क्या होता है, एफिशिएंट एम्प्लॉयज में फील डिस्करेज्ड। ठीक है, सो दीज आर द मेरिट एंड डिमेरिट। मेरिट में क्या होगा, it will help to improve the efficiency of the employees. Then team spirit. Team spirit means all the employees are working together to achieve the organizational goal. Demerit, avoiding work. Some employees may try to avoid their work as they are thinking that the organizational work can be done by the others. That's why they leave the work. Then efficient employees may feel discouraged. Okay. So this is your 14th principle of Henry Fayol. That is the 13th principle, that is principle of initiative. Initiative का मतलब क्या होता है, making out plans and making its proper implementation of those plans. So Fayol suggested that it is the responsibility of the management to motivate the workers so that they work as per their plan. So manager has to motivate their subordinate to show their initiativeness, to make participate in the organizational decision making process, to give their suggestions. So the merits are feeling of belongingness, वो लोग ज्यादा बिलोंगिंग होकर काम करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो सकता है, बिफोर टेकिंग एन इम्पोर्टेंट डिसीजन मैनेजर क्या करेगा, अपने सबऑर्डिनेट के साथ कंसल्ट करेगा। उसी तरह ही मेरिट्स में आएगा फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, और एक है एनकरेजिंग, एम्प्लॉइज आर मोर एनकरेज्ड टू डू द वर्क। डिमेरिट्स, some of the employees may feel dissatisfied if their proposals or if their suggestions are not taken by the management. Adverse effect, बैड इम्पैक्ट हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में। सो देन द लास्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिटिकर्स। एस्पिरिटिकर्स मीन्स देयर मस्ट बी ए टीम स्पिरिट कोऑर्डिनेशन अमंग द वर्कर्स। एस्पिरिटिकर्स मीन्स देयर मस्ट बी ए means devotion and loyalty of the workers to the organization. That means एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक ग्रुप में जितने भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं वो लोग एक टीम स्पिरिट होकर काम करना चाहिए। जैसे कि इंडियन क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर्स है, इंडियन फुटबॉल टीम में जितने भी प्लेयर्स हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए, अपना एक ग्रुप बन के खेलना चाहिए, तभी जाकर वो लोग मैच को जीत पाएंगे। इसी तरह ही क्या होता है, अगर हम लोग एस्पिरिटिकर्स होकर काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल ठीक से अचीव हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, हार्मोनी, टीम स्पिरिट, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन कैन बी डेवलप्ड अमंग द वर्कर्स। सो हियर Fayol suggested that to discuss two things, that is the first one is to divide and rule। जैसे कि अंग्रेज के जमाने में वो लोग क्या करते थे, इंडिया में डिवाइड एंड रूल अप्लाई करते थे, उसी तरह मैनेजमेंट को ये नहीं करना चाहिए, डिवाइड एंड रूल प्रोसीजर नहीं फॉलो करना चाहिए। एंड अवॉइडिंग रिटन कम्युनिकेशन प्रोसेस, जितना कम हो सकता है उतना कम रिटन कम्युनिकेशन प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। मेरिट में क्या होगा, इट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉइज एंड द सेकंड वन टीम स्पिरिट। उसी तरह डिमेरिट्स में क्या होगा, अवॉइडिंग वर्क and effective efficient employees are feel discouraged. So this is all about the 14 principles of management given by Henry Fayol. You have to go through all the notes, you have to write it in your BSM regular notebook. So this is for today's class. Thank you.